It gives the entire consciousness. That if you just accept that you're a servant of Krishna, then immediately all your troubles will go away. And if you chant Hare Krishna, gradually your life will change, your heart will melt, and tears will come to your eyes. He says that all the devotees go out and they're only begging everyone, please come and chant with us. Finally, Bhaktivinoda Thakur says, when you chant the name of the Lord, then all fears will run away. Radha Krishna Bobo. Limu, let's get out there and help people customize and save with Liberty Mutual. என் பேர் கவிதா. என் குழந்தை பேரு விஷ்ணுவர்சன். Bolo re Shobha. Shishi Radha Krishna Bolo. Bolo re Shobha. Shika diya, shobna diya, preche neche goli thai. Shika diya, shobna diya, preche neche goli thai. Hariba bolo re shikadiya. Radha Krishna bolo re Shobha. Shri Radha Krishna bolo re Shobha. Niche Maya boshe, jacho beshe, kacho habu dubu bai niche. Hari bolo re niche mayar boshe. Radha Krishna bolo re Shobha. Shri Radha Krishna bolo re Shobha. Jai Krishna Das, hey Vishwas, kole tor tuko nai. Hari bolo re ji Krishna Das. Radha Krishna bolo re Shobha. Shri Radha Krishna bolo re Shobha. Krishna bolbe jabe pulaka habe, jorbi anki boli thai. Krishna. Okay, get ready. You got to put your hands up the next one. Get ready. Not yet. Not yet. Krishna bolbe jabe pulaka habe, jorbi anki boli thai. Krishna
Krishna bol bolaka Hare Hari bol bolo Krishna bol bejade Radha Krishna bol bol bolo re shobha Shri Shri Radha Krishna bol bol bolo re shobha Radha Krishna bolo Shange cholo e matra vikachai Radha Krishna Hari bol bolo Radha Krishna bolo Radha Krishna bol bol bolo re shobha Shri Shri Radha Krishna bol bol bolo re shobha Jai Shakal Vipod Bhakti Vinod Bolen Jako Nom Nam Gai Jai Here it comes again. Jai Shakal Vipod Bhakti Vinod Bolen Jako Nom Nam Gai Bhakti Vinod Hari Bol Bolo Re Jai Shakal Vipod Radha Krishna bol bol bolo re shobha Shri Shri Radha Krishna bol bol bolo re shobha Hari bol Hari bol Hari bol Dai Goda Hari bol Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jai Go Premanande, Shri Harinam Sankirtan Ki, Shri Harinam Mantra Ki, Shri Harinam Prabhu Ki, Go Premanande. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo.
Wait, before you scroll away, Democratic headquarters urgently needs you to sign this petition. Gaur Premanandi Haribo. Srila Prabhupada, when he came to America, brought with him trunks of books. They were the Srimad Bhagavatam first canto in 3 volumes. But before he came to America, the books had already arrived because he had distributed 16 sets of his Bhagavatam personally to the Library of Congress in New Delhi. New Delhi then distributed them around the world, and one of the sets ended up in the New York Public Library. Brahmananda Prabhu told me that Prabhupada used to take 3 bus transfers when he got to New York to go to the New York Library just to look at his books in the library. He was so pleased that they had arrived in America. Brahmananda told me that was his entertainment. When the books go into someone's home, they affect people in ways that are unimaginable. People have to move. Hare Krishna, everybody. Hari Bol. Wasn't it amazing aesthetic, huh? So wonderful kirtan, so wonderful bhajan. It was amazing. I enjoyed it. Hope you all enjoyed as well. आप सभी को मजा आया होगा. कितना amazing था वो. ठीक है. हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे. आज मैं देख रही हूँ कि किंजल आई हुई है. किंजल, वेलकम. NJ0012 कुसुमा शशिधर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके आपका नाम बता सकते हो और इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वुड बी अमेजिंग. हरे कृष्णा. Hare Krishna, everybody. Thank you for joining. We'll wait for a couple of more minutes. प्रभु जी अभी ज्वाइन करेंगे. Oh, धर्मेंद्र के अंकल 15 days पहले passed away हो गए, maybe due to COVID. So हम सब आज उनके लिए pray करेंगे. Sorry for your loss, धर्मेंद्र. Yeah. वो जरूर नहीं. सुनबा. कोविड वाला से एक्सपायर था यार. It is 76-year-old. वो 76-year-old था. Oh, good. तो वो बहुत ही अच्छा लाइफ स्पैन जिए और अभी वहाँ गए हैं, तो डेफिनेटली विल प्रे. प्रभु जी ज्वाइन हुए. प्रभु जी हरे कृष्णा. माता जी हरे कृष्णा. माता जी एक चीज पूछनी है मेरी. हरे कृष्णा एवरीवन. मैं होप करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं ठीक हैं और सबकी हेल्थ ठीक है सब. और थैंक यू आप सब लोग आए. मैं एक चीज पूछना चाहता था. मैं अपनी पिक्चर देख रहा हूँ, जो छोटी आ रही है उसमें अनक्लियर है, वो ब्लर है. तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों को भी ब्लर दिख रही है? हाँ प्रभु जी, इट्स ब्लरी. तो वो ब्लर क्यों हो रही है?
लाइट की वजह से होगा या आपके फोन का वो कैमरा क्लीन कर दीजिए। ओके, 1 मिनट दीजिए सर। बेटर है? हाँ अभी बेटर है, सही। तो फोन ही क्लीन करना था। और भी कीजिए थोड़ा। ओके, होल्ड कीजिए। अब ठीक है? हाँ अच्छा, सबके लिए ठीक है। हाँ, मेरे लिए ठीक है। सभी को ठीक दिख रहा है? 1 मिनट और दे दीजिए। चलिए तब तक गाएंगे। प्रभु जी जय जब राधा। तक सॉरी प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मुझे जय राधा माधव के बारे में ही बताना था कि हम है ना क्यों नहीं ऐसा करें कि एवरी टाइम हम चांस देंगे। जैसे रोहन है, हमारा दूसरा बच्चा है, क्या नाम है उसका, मैं भूल गई, उमांश। तो वो लोग बहुत ही टैलेंटेड है। तो हम हर बार उनको भी चांस देंगे कि नेक्स्ट वीक आप गाओगे, नेक्स्ट वीक आप गाओगे करके। सो दैट वे एवरीबडी विल गेट चांस टू सिंग द जय राधा माधव। कैसा रहेगा ऐसा? बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ आज से ही शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज कौन वॉलंटियर करेगा? रोहन आपको करना है? पूछिए आज कौन गाना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा रोहन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैं गाना चाहूंगा बट आप थोड़ा सा, शायद मेरे को थोड़ा सा ना बीच में वो थोड़ा सा आगे पीछे रहा था। आप प्लीज हेल्प करना। कोई टेंशन नहीं है प्रभु जी, आप गाइए। ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन नंदन, यशोदा नंदन ब्रज जन नंदन। यमुना अति तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरवर धारी। बहुत बढ़िया रोहन प्रभु, बहुत बढ़िया। आगे तो गाइए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बहुत बढ़िया। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू रोहन प्रभु, बहुत बढ़िया। और संदली माता जी, बहुत बढ़िया आइडिया था ये तो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शुरू करेंगे आप प्रभु जी। सॉरी टू इंटरप्ट। बिफोर वी स्टार्ट, आज हमारे बीच थोड़े और नए फैमिली मेंबर ज्वाइन हुए। मेरी फ्रेंड है पूनम, जो यहीं पर लोकल रहती है, तो वो ज्वाइन हुए। पूनम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वेलकम। यस, थैंक यू माता जी। पूनम माता जी, थैंक यू। और किंजल ज्वाइन हुई है। किंजल यंग है एकदम, पर बहुत ही डिवोटी है। उनका फैमिली पूरा ही सत्संग में पहले से ही इन्वॉल्व है इस्कॉन के साथ। सो वेलकम किंजल। अगर थैंक यू किंजल माता जी। यस, थैंक यू। मैंने जैसे बताया था NJ0012 भी ज्वाइन हुए हैं, पर उनका मुझे नाम नहीं पता है। तो आपका भी बहुत बहुत वेलकम। यस प्रभु जी, अगर आप लोग कभी आके अपनी एक बार जस्ट दर्शन दे दें तो उसमें हमें क्या पता लगता है कि हमें अपनी फैमिली के बारे में और पता लगता है। अभी तो ऐसा लगता है NJ0012 ऐसा लगता है कोई सीक्रेट कोड है और कोई सीक्रेट एजेंट है। तो अगर आप अपनी कभी बताएं आप कौन है तो अच्छा रहेगा। कभी भी, अगर आज नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बताना चाहें। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam, Maglo Shishra Prabhupada. I'm Kusuma from New Jersey. Actually, one of my friend Kathleen from New York, Brooklyn Temple, she had sent me the email of their temple newsletter. In that, this link was there. So that's how I just joined. Lovely, lovely, Mataji. Thank you very much, Mataji. Just wanted to know, you understand Hindi, right? Yes, Prabhuji. Okay, yeah.
ठीक है, थैंक यू वेरी मच माधवी, थैंक यू. It's Krishna's arrangement. Let's see how you got that link from one of your friend who I think had joined, but I think she couldn't understand Hindi and that's why she gave it to you. Yes. Yes, Thank you so much. very sweet and kind of her. Thank you Mataji, thank you for coming. Thank you. चलिए, और कोई माताजी नया आदमी? so far तो मैं नहीं देख रही हूँ. हमारे फैमिली मेंबर जो आते हैं वो ही है, पर प्लीज क्षमा करना अगर मैं किसी को नहीं देख पा रही हूँ. चलिए, बढ़िया है. या ठीक है. चलिए, आप तक देखिए माता जी, और मैं तक एक रिवीजन कर लेता हूँ कि हमने पिछले हफ्ते में क्या किया था, तो फिर हम आज आगे बढ़ेंगे. आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. 3rd चैप्टर आप देखिएगा. हम सब लोग जो है रिलेट कर पाएंगे कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, और हमारी कई जो है हमारे डाउट्स हैं वो आज क्लियर होंगे. आप देखिएगा. तो एक जस्ट छोटी सी रिवीजन कर लेंगे कि हमने पिछली बार 70th किया था, जिसमें भगवान ये बता रहे हैं कि जो भक्त होता है वो कभी भी डिजायर्स जो मन में आते हैं उससे डिस्टर्ब नहीं होता. तो हमने इस बारे में डिस्कशन और करी थी कि डिजायर्स तो आएंगे, क्योंकि हम जो है सोल हैं, और सोल जो है वो एक्टिव है, कभी भी वो इनएक्टिव नहीं हो सकती. इसलिए जो कुछ लोग बोलते हैं कि आप ध्यान करो और ध्यान में 0 कर लो, तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ध्यान करना है, पर किस पे करना है? कोई तो होना ही चाहिए जिस पे आप ध्यान करोगे, क्योंकि सोल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि वो फीलिंग, विलिंग और थिंकिंग, तो ये चीजें कभी बंद नहीं हो सकती. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सोचना बंद कर दें. आप ट्राई कर लीजिए. अगर आप मेडिटेशन में भी बैठते हैं, कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ही सोचेंगे. तो भगवान जो है, बेटर है कि भगवान पे ध्यान दीजिए, भगवान के बारे में सोचिए, भगवान के बारे में बात कीजिए. इस तरह से जो हमारी इंद्रियां हैं वो जो है प्योरीफाई होती हैं. तो हमने 70 में ये किया था कि जो भक्त होता है वो डिजायर्स तो मन में आते हैं, वो सबके आएंगे, पर वो उस डिजायर से जो है डिस्टर्ब नहीं होता. वो डिजायर्स को मटेरियल से स्पिरिचुअल कर लेता है. और फिर और दूसरी बात, एक जो भक्त होता है वो जानता है कि भगवान जो है उसकी सारी मटेरियल नेसेसिटी, जो भी चीजें चाहिए हमें भक्ति के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए, वो सब भगवान जो है जरूर देते हैं. उसमें कोई भी डाउट नहीं है भगवान के ऊपर. तो इसलिए जो भक्त है वो बड़ा सेटिस्फाइड रहता है. हमने ये किया था 70 में. फिर हमने 71 में हमने देखा कि कैसे भगवान बता रहे हैं कि जो आदमी अपनी डिजायर्स छोड़ देता है वो आदमी जो है रियल पीस पा सकता है. लेकिन हमने फिर इस पे और डिस्कशन करी थी कि डिजायर छोड़ना मतलब क्या. डिजायर छोड़ना मतलब ये नहीं कि अब आप 0 हो गए, अब आपके पास कोई डिजायर नहीं है. जैसे हमने पहले में डिस्कस कर लिया कि मटेरियल से स्पिरिचुअल कर लिया, कि अगर आपका डिजायर कुछ खाने का है तो भगवान को भोग लगाइए और खाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. ऐसे डिजायर्स को आप स्पिरिचुअल कर सकते हैं. मुझे याद है कि जब महाराज जी आए थे हमारे बीच में, तो किसी यंग लड़के ने पूछा था कि उसको लस्ट की प्रॉब्लम है. तो विच इज विद एवरीवन, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई एम्बैरेसिंग बात नहीं है, कि सबके ही जब यंग होता है आदमी तो ये लस्ट प्रॉब्लम होती है. तो महाराज ने बहुत अच्छा आंसर दिया था कि कैसे इस डिजायर को जो है मटेरियल से स्पिरिचुअल कर लें. कैसे? आप शादी कीजिए, प्रॉपर धार्मिक हिसाब से आप शादी कीजिए, धर्म के हिसाब से आप गृहस्थ जीवन जिए, और उस हिसाब से अपने डिजायर भी पूरे हो गए और भगवान की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से भी आप चले गए, और कोई कर्म भी नहीं आए. तो इस तरह से जो है भगवान 71 में बता रहे थे कि इस तरह से जो आप रियल पीस पा सकते हैं, टेम्पररी पीस नहीं. हमने ये भी बहुत बार डिस्कस किया कि रियल पीस क्या, जहाँ पे कोई टेंशन ना हो. तो अभी तो क्या है कि एक साइकिल चल रही है कि थोड़ा टाइम हमें पीस मिलती है, फिर उसके बाद एकदम प्रॉब्लम आ जाती है. तो वो क्यों आती है वो भी हम आज 3rd चैप्टर में करने वाले हैं. और हमने बात करी थी, जो मैं पॉइंट बताना भूल गया था, संजीवनी माता जी ने किया था कि कैसे निर्ममो निरंकार के हमने बारे में बात करी थी, कि जो हम सोचते हैं कि ये मेरा घर, तो हमने उसके ऊपर भी डिस्कशन करी थी, एग्जाम्पल देके कि ये जो घर है इससे पहले किसका था, इसके बाद किसका है. तो हम तो एक धर्मशाला की तरह जी रहे हैं. हमें भगवान देते हैं कुछ चीज कि हम उसका ढंग से यूज कर सकें, उसका ध्यान से हम उसकी केयर कर सकें और आगे चलें. तो अगर हम अटैच हो जाएंगे उस चीज से कि ये मेरा है, ये मैंने बनाया, इस घर को मैंने बनाया है, वो भी आज हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, तो वो फिर हमारी को डिस्ट्रैक्ट करता है भक्ति से. और फिर फॉल्स ईगो की हमने बात करी थी कि एक फॉल्स ईगो होती है, एक ट्रू ईगो होती है. और फॉल्स ईगो मतलब मैं अंग्रेज हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ, ये सारी चीजें हमने उस दिन डिस्कस करी थी. गोरा हूँ, काला हूँ, तो ये सारी चीजें हमने बात करी थी. तो आज देखिए
72 में भगवान क्या बोल रहे हैं, आइए देखेंगे अब। एषा ब्रह्मी स्थितै पार्थ नैनम प्राप्य विमोयति स्थित वास्यम अंत काले अपि ब्रह्मा निर्वाणम रक्षति। भगवान आगे और इसको खत्म करने से पहले चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखेंगे। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम, जी थोड़ा ऊपर ले लीजिए, अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। थोड़ा नीचे ले लीजिए फिर से। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यही तरीका है स्पिरिचुअल लाइफ पाने का। कौन सा तरीका है? जो भगवान ने पहले 71 में डिस्कस कर दिया कि अपनी जो इच्छाएं हैं उसको हमने जीरो नहीं करना है, लेकिन हमने उसको क्या करना है, उसको स्पिरिचुअल कर देना है, स्पिरिचुअलाइज कर देना है हमने अपनी सेंसेस को। और ये एक तरीका है पाने का। और एक बार जब आप ये पा लेते हैं फिर आदमी जो है कभी मोहित नहीं होता। भगवान कह रहे हैं क्यों? क्योंकि ज्ञान आ जाता है, हमें ज्ञान मिल जाता है कि हम जो हैं ये शरीर नहीं, ये आत्मा है। आप देखिए बेसिकली जितने भी डिजायर्स आते हैं हमारे मन में वो इसलिए आते हैं कि हम सोचते हैं हम बॉडी हैं, राइट? तो कुछ तो हमने सेकंड चैप्टर में भी ये अभी जो हम सेकंड चैप्टर में आई थिंक 40 में हमने या 42 में ये पढ़ा था या 44 में आई थिंक कि कुछ बॉडी की जरूरतें हैं, वो तो हमने करनी ही करनी है पूरी, क्योंकि नहीं तो फिर बॉडी जो है काम नहीं करेगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि खाना ही मत खाइए, वो तो खाना ही खाना है। जो बेसिक नेसेसिटीज हैं बॉडी की वो तो हमने पूरी करनी है। लेकिन बाकी जो डिजायर्स जो हैं उसको कैसे हम जो जरूरत है वो पूरा कीजिए, लेकिन जो अननेसेसरी डिजायर्स हैं उनको हम कैसे जो है हटा सकते हैं, या अगेन वही स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, भक्ति से कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि यही एक तरीका है बिविल्डरमेंट ना होने का, मतलब कि बिविल्डर ना होने का मतलब कि फिर से मोहित ना होने का, क्योंकि हमारे पास ज्ञान होता है। अच्छा एक चीज यहाँ पे है, एशी ब्रह्मी स्थिता, एशा ब्रह्म स्थिता, सॉरी एशा ब्रह्मी स्थिता। ये ब्रह्मी स्थिता मतलब क्या है? ब्रह्मभूत स्टेज की बात हो रही है। ये हो सकता है आप लोगों के लिए पहला वर्ड हो, पहले टाइम ये वर्ड आप सुन रहे हो। जो इस्कॉन में ऑलरेडी हैं वो जानते हैं। तो आगे श्लोक भी है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कामशति। ब्रह्मभूत जो स्टेज है वो क्या है कि ब्रह्म बेसिकली क्या है कि स्पिरिट। तो जब ये आदमी समझ जाता है कि मैं स्पिरिट सोल हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, तब ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो हमेशा जो है प्रसन्न रहता है, ना सोचती ना कांक्षती। क्यों? क्योंकि ना वो लेमेंट करता है किसी चीज के लिए, ना वो हैंकर करता है किसी चीज के लिए। देखिए हम लोग जो है हैंकर करते हैं, हैंकरिंग्स बहुत है हमारे अंदर, जैसे दिल करता है ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, क्योंकि हम सोचते हैं कि इससे हमें सुख मिलेगा। पर जब हमें मिल जाता है तो हमें सुख नहीं मिलता। आप सोचिए, सुख थोड़ा बहुत ठीक है, हो सकता है सुख मिलता हो, लेकिन लेमेंटेशन ज्यादा हो जाती है। लेमेंटेशन मतलब क्या? अब यही डर लगा रहता है। समझिए जैसे मेरे पास बड़ा घर आ गया, बहुत बड़ा घर आ गया, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आज हम घर ना लें, हम अच्छा घर लें, बढ़िया फैसिलिटीज हो, अंदर गर्म पानी हो, सब कुछ हो, गर्मी में एसी हो, ना जब ठंड हो तो हीटर हो। इस चीज के लिए भगवान मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा आपने कोई चीज को फैला दिया तो फिर लेमेंटेशन शुरू हो जाती है। क्यों होती है लेमेंटेशन? देखिए उसमें डर लगता रहता है, अब कोई ये ले तो नहीं जाएगा, कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगा, कोई घर में आग तो नहीं लग जाएगी, कोई बड़ी कार ले लिया आपने तो कोई स्क्रैच तो नहीं कर जाएगा। तो इससे पूरी खुशी नहीं मिलती है, थोड़ी लेमेंटेशन भी, दुख, जो डर भी है जो है वो आ जाता है। तो पर जो आदमी ब्रह्म भूत स्थिति पे होता है वो ये सारी चीजों से परे हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये शरीर नहीं है, आत्मा है, और जितनी जरूरत है उतनी ही यूज करता है, और बाकी भगवान पे विश्वास रखता है कि भगवान जो है पूरी नेसेसिटीज पूरी करेंगे। तो यहाँ पे जो है 72 करके भगवान कंक्लूड जो है इस तरह से कर देते हैं। अब देखिए आगे आइए, थर्ड चैप्टर आज शुरू हो रहा है। ये सेकंड चैप्टर हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल रहा हो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं बदल रहे हैं बार बार, कभी किस बारे में बात होती है, कभी किस बारे में बात होती है, पर हमने इस पे डिस्कस किया था क्योंकि ये चैप्टर जो है समरी है कि आगे क्या शुरू होने वाला है। तो एक्चुअल जो चीज है आप शुरू होने वाली है, एक्चुअल मतलब ये नहीं कि पहले जो था वो नहीं एक्चुअल था, पर उसके जस्ट थोड़ा हिंट दिया भगवान ने कि क्या अब पूरी भगवत गीता में बातें होंगी। तो कर्म योग के बारे में अब बात होने जा रही है चैप्टर 3 में। तो आइए आज हम इससे शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच
जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्माणि घोर माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि भगवान के देखिए नाम अलग अलग बोले हैं। केशव, केशव हमने आई थिंक फर्स्ट में चैप्टर में डिस्कस किया था कि भगवान को केशव क्यों कहा जाता है, क्योंकि कंस का जो एक साथी था उसका नाम था केशी, वो घोड़ा था, तो कैसे भगवान ने उसका वध किया, इसलिए भगवान को केशव भी कहा जाता है। और दूसरी बात, जनार्दन भगवान का नाम यूज किया गया है, तो जनार्दन मतलब जो लोगों का दुख जो है हरने वाले, तो इसलिए भगवान को ऐसा नाम दिया गया, जनार्दन यहाँ पे बोला गया है। तो अब देखिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अभी तक सेकंड चैप्टर में हम क्या समझने की कोशिश कर रहे थे कि भगवान ये बोल रहे हैं अर्जुन को कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म नहीं, भक्ति करो, क्योंकि अगर आप भक्ति करोगे तो ना कर्मों के चक्कर में फंसोगे और ना ये जो मृत्यु, जन्म मृत्यु का चक्कर है, ये इन सब चीजों से बचोगे। तो इस भक्ति को बुद्धि योग भी कहा गया है कि अपनी इंटेलिजेंस जो है यूज करो। तो अर्जुन जो है वो अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। एक्चुअली वो कंफ्यूज नहीं हो रहे, वो सब जानते हैं, लेकिन वो हम सब लोगों के लिए ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप भक्ति करने को कह रहे हो, जैसे हमने डिस्कस किया कि भगवान के लिए सेवा कीजिए। बार बार मैं वर्ड यूज करता हूँ, हो सकता है आप में से किसी को लगता हो कि अरे सारा टाइम सेवा की बात करते रहते हैं, लेकिन हमने इस पे क्लैरिफिकेशन किया कि इसका मतलब क्या होता है। हाँ, तो वो ये बोल रहे हैं एक तरफ तो आप ये कह रहे हो पूरा टाइम भक्ति करो, और दूसरी तरफ आप मेरे को युद्ध करने को कह रहे हो। तो ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए युद्ध में तो कई लोग मरेंगे, कई लोग मरेंगे, तो जब आप किसी को मारते हैं तो आप पे कर्म आएंगे, और अगर आप पे कर्म आएंगे तो फिर आप भक्ति कैसे करेंगे? तो वो ये दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं, जबकि ऑलरेडी भगवान समझा चुके हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो, है ना। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? फॉर अ हायर रीजन कह रहा हूँ। हम लोग ये सब लोगों ने, हमने जितने भी आप सब लोग हैं, हमने ये डिस्कस करी थी कि भगवान कह रहे हैं फॉर अ हायर रीजन। और क्या रीजन है हमने वो भी डिस्कस किए थे कि युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं। क्योंकि दुर्योधन एंड फैमिली ने अननेसेसरी देखिए उनके ऊपर तकलीफें डाल रखी, उनका राज्य छीन लिया, कुंती देवी के साथ कितने अत्याचार हुए, द्रौपदी की देखिए चीर हरण करने को कोशिश की गई। तो कृष्ण भगवान ऐसे ही नहीं कह रहे कि जाओ भाई किसी के साथ भी लड़ लो, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। और पहले में ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये धर्म के लिए युद्ध हो रहा है, सिर्फ कोई अपनी फॉल्स ईगो के लिए नहीं हो रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पर धर्म के लिए हो रहा है। तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे भगवान अर्जुन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्यों युद्ध के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने 5 रीजंस दिए कि मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं करना, इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, बहुत सारे रीजंस दिए। लेकिन भगवान ने सारों के आंसर्स भी दिए कि क्यों तुम्हें ये लगता है कि ये युद्ध करने से तुम्हें शांति मिल जाएगी और पूरे युग को, जितने भी प्रजा है, शांति मिलेगी, लेकिन हो सकता है इसका उल्टा हो, इसलिए तुम्हें धर्म के लिए युद्ध करना जरूरी है। तो अर्जुन समझ चुके हैं, आप सब भी समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं कि अगर अभी भी मन में कोई शंका है हम लोगों के बीच में तो वो अब क्लियर होगी। भगवान देखिए इसको और डिटेल में समझाएंगे। इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप क्यों जो है मेरे को एक तरफ भक्ति कहते हो, एक तरफ युद्ध करने को कहते हो। और दूसरी बात ये है कि अर्जुन ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं भक्ति मतलब क्या, सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। कई लोग, जैसे देखिए कई लोग, मिसकंसेप्शन है ये कि कई लोग जो हैं लोग आके इस्कॉन को बोलते हैं अरे तुम लोगों ने हमारे बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा कि देखो सारा टाइम बस हरे कृष्णा करते रहते हैं, और क्या करते हैं आप लोग। ऐसे कई लोग बोलते हैं, पर इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो क्योंकि उनके हिसाब से क्या है कि भक्ति मतलब क्या, रिटायरमेंट। भक्ति मतलब कुछ मत करो, बस बैठ जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ। लेकिन देखिए ये 3rd चैप्टर इसलिए मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे भगवान पहले ही 8-10 श्लोकों में
एकदम क्लियर कर देंगे कि भक्ति मतलब क्या है, कि आप जिस जगह पे हैं उस जगह पे ही बैठ के आप भक्ति कर सकते हैं। जिस पोजीशन में हैं, अगर आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ बैठ के भक्ति कर सकते हैं, अगर आप राजा हैं तो राजा रह के भक्ति कर सकते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन रह के भक्ति कर सकते हैं, अगर आप इंजीनियर है तो इंजीनियर रह के भक्ति कर सकते हैं। वो अभी कैसे कर सकते हैं वो अभी देखिए, भगवान बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, इसमें सारा डिस्कस करेंगे। तो लोग जो हैं, अच्छा एक बात है, कोई प्रश्न पूछ सकता है पर लोगों के मन में ये ऐसे विचार आते क्यों हैं कि भक्ति मतलब क्या, भक्ति मतलब सब चीजें छोड़ दीजिए, घर छोड़ के चले जाइए, ऐसा कोई प्रश्न पूछ सकता है कि हम लोगों के मन में विचार इसलिए आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि एक्चुअली कुछ लोग ऐसा करते हैं, हाँ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि विदाउट किसी गाइडेंस के, विदाउट ढंग से भगवत गीता पढ़े, अपने आप जो है डिसीजंस ले लेते हैं और सोचते हैं नहीं, या कई लोग जो हैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप करने के लिए भी जो है, बचने के लिए जो है ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं और ऊपर चले छोड़ छाड़ के लोगों को अपने घर बाहर या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के चले जाते हैं और नाम दे देते हैं भक्ति। पर ऐसा नहीं है, आप देखिए भगवान बिल्कुल मना कर रहे हैं कि ऐसा जो है नहीं है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कुछ लोग तो या तो ये कर लेते हैं एक्सट्रीम कि सब छोड़ के भक्ति करो, या कुछ लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करने लग जाते हैं। एक्चुअली देखिए एक सन्यासी बता रहे थे कि अगर आप दिन में 8 घंटे काम करें, सिर्फ 8 घंटे काम करें और ढंग से काम करें, सिंसियरली काम करें आप, उसके बाद आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी जो मेन 8 आवर्स थे, अपने जो 12 घंटे के, उसमें से आपने दे दिए, बस अब बाकी जो टाइम है आपको जो है भगवान की तरफ भी या घर की तरफ, जिसको आप कह सकते हैं अगर आप गृहस्थ हैं तो स्पेंड करना चाहिए। यही नहीं कि पूरा टाइम लगे रहिए। जैसे कुछ लोग जो है देखिए सुबह 7 बजे से बिजनेस शुरू करते हैं, 8 बजे से बिजनेस शुरू करते हैं, रात के 11 बजे तक चलता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं दिल्ली में या और कहीं पे, 8 बजे से उनकी स्टोर शुरू होते हैं, रात के 11 बजे तक काम कर रहे होते हैं। तो इसका भी कोई फायदा नहीं है। तो एक प्रश्न है, कोई ये पूछ सकता है कि अगर मैं ज्यादा काम करता हूं तो मैं ज्यादा कमाता हूं, अगर मैं कम काम करूंगा तो कम कमाऊंगा। ऐसा ये जो है एक रीजन देते हैं, लॉजिक देते हैं। तो इसके ऊपर कोई आप में से कोई बोलना चाहेगा कि ऐसा क्या ये जो लॉजिक दे रहे हैं वो सही लॉजिक है? आपको क्या लगता है कि अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो मैं ज्यादा पैसा कमा सकूंगा और अगर कम काम करूंगा तो कम कमाऊंगा? आपको क्या लगता है ऐसा ये लॉजिक जो है ये ठीक है? इसमें कोई बोलेगा? कुछ थोड़ी इंटरेक्शन हो जाए आज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे लगता है जब कोई ऐसे बोलता है कि मेरे को ज्यादा पैसे आएंगे, तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा है। वो काम जो कर रहा है रिजल्ट्स के लिए कर रहा है, एज अ ड्यूटी नहीं कर रहा उसको। और वो ये भूल जा रहा है कि सिर्फ पैसा कमाना ही उसकी एक ड्यूटी नहीं है, उसकी कुछ और भी ड्यूटी है और हर ड्यूटी के कुछ सर्टेन लिमिटेशंस होती है। तो बात मेरे को यही लग रहा है बस, बाकी शायद क्या पता। बहुत बढ़िया। ये तो प्रभु जी आपका तो आंसर बहुत ज्यादा डीप हो गया, ये तो बहुत अच्छा आंसर है। पर जैसे नॉर्मल जो लोग हैं, आप तो डेफिनेटली भक्त हैं तो आप इस लेवल पे सोच रहे हैं, पर मैं बताता हूँ कुछ लोग क्या कहते हैं कि अगर हम ज्यादा काम करेंगे, जैसे मैंने कहा, तो ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने ये सुना होगा, हिंदी में कहावत है कि आपकी किस्मत से 1 पैसा ज्यादा आपको नहीं मिल सकता और आपकी किस्मत से 1 पैसा कम आपको नहीं मिल सकता। मतलब अगर आपके जो पुराने कर्म हैं उस हिसाब से अगर आपको ज्यादा मिलना होगा, तो अगर आप 8 घंटे भी काम करेंगे तो उसी में आ जाएगा वो, ये गारंटी है। अगर आप उसको ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वही जो पैसा 8 घंटे में आना था, वही पैसा जो है वो थोड़ा स्ट्रेच होके आ जाएगा। सिंपल है, आप ट्राई करके देख लीजिए कि अगर आप 12 घंटे काम करते हैं, आप 12 घंटे से उसे 8 घंटे दबा लीजिए और आप बाकी टाइम जो है अच्छा गृहस्थ, जिसको धर्म के हिसाब से आप धार्मिक रूल्स के हिसाब से आप फॉलो कीजिए। आप थोड़ा बहुत भगवान के बारे में सोचिए, जप कीजिए। ये सब जो आपको 12 घंटे में मिलना था वो गारंटी है 8 घंटे में मिल जाएगा, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि जितना आपको मिलना है उतना मिलना ही मिलना है। उसको ज्यादा खींच के जो है उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ज्यादा काम करके भी कोई फायदा नहीं है। जितना मिलना है उतना आपको आएगा ही आएगा। पर काम करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब आप काम करना छोड़ दें,
ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। देखिए भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका काम है, काम तो करना है, लेकिन मां फलेषु कदाचन, जो फल है वो जो है वो मैं आपको दूंगा। तो और जो दूसरी साइड है, कुछ लोग बिल्कुल ही छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या होना चाहिए, क्या बैलेंस कैसे करना चाहिए, ये अभी हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पर जो अर्जुन है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक तरफ तो आप मुझे भक्ति करने को कह रहे हो, मतलब क्या कि वो ये सोच रहे हैं कि भक्ति मतलब सब छोड़ दो, अपनी कोई ड्यूटी मत करो। हाँ, और दूसरी तरफ आप मुझे वॉर करने को कह रहे हो, लड़ने को कह रहे हो, विच इज एक्चुअली हिज ड्यूटी। हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं कि भगवान उसे क्यों कह रहे हैं उन्हें, अर्जुन को, क्योंकि उनका वो जो है वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय को जो अपना धर्म, अपनी ड्यूटी तो करनी ही करनी है। तो वो ड्यूटी से एस्केप, ड्यूटी से बचने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए जो है उसको भक्ति समझ बैठे हैं। ऑल्दो मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि वो समझ नहीं बैठे हैं, वो ये जान पूछ के ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि हम में से जो संसार में कई लोग जो हैं ऐसे जो करते हैं, जो अपनी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के जो है चले जाते हैं और बोलते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। तो उस पे भगवान आगे देखिए बोलने वाले हैं कि एक्चुअल भक्ति क्या है। आगे चलिए, अब हम आगे चलेंगे 3.2 पे। प्रभु जी, भैया, हरे कृष्ण। हाँ जी। आई थिंक धर्मेंद्र प्रभु को कुछ बोलना था। हाँ जी, बोलिए धर्मेंद्र प्रभु जी, बोलिए। सॉरी, मैं आपको देखा नहीं, बोलिए। नहीं, इट्स एक बात है कि सर वो डिपेंड ऑन वर्क होता है ना, काम करने का। तो हाँ जी, डिपेंड ऑन द इस ड्यूटी, कौन सा जॉब कर रहा है, वो हिसाब से उसका वर्किंग आवर्स डिसाइड होता है। हाँ ये भी ठीक है प्रभु जी, पर जैसे आपको एग्जांपल दीजिए। सपोज पायलट है, अभी इंडिया से फ्लाइट जाएगा और इधर से दुबई जाएगा, दैट इज 8 आवर ड्यूटी एंड 3 आवर ड्यूटी, दैट इज डिफरेंट ऑन द जॉब। और वैसा होता है, कोई भी काम आप एक तरह से नहीं देख सकते। सपोज बिल्डर है, कोई बिल्डिंग का काम करता है, कोई ड्राइविंग का काम करता है, कोई पेंटिंग का करता है, दैट इज डिफरेंट ऑन द जॉब। तो प्रभु जी करेक्ट, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये फिर वही बात है कि हमें कितना विश्वास है। अगर आपको विश्वास है तो आप इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं 8 घंटे ही काम करूंगा, पर अगर आपका काम इतना अच्छा है तो बोलेगा भैया क्या कर सकते हैं, इसी पेंटर को लो, काम तो ये 8 ही घंटा करता है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। ये एक विश्वास की बात है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार कि मेरे गुरु ने मुझे विश्वास दिया कि तुम ये गलत काम मत करो, लोगों से पैसे लेके डुप्लीकेट बिल बनाना, है ना। तो मैंने छोड़ दिया। तो कुछ टाइम मुझे तकलीफ हुई, लेकिन देखिए उसके बाद डबल काम आ गया, डबल नहीं ट्रिपल काम आ गया। तो वैसे ही आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये डिपेंड करता है क्या काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप 1% सोचिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा टाइम भगवान के लिए जो है उसको स्पेंड करूं, उसको अलग रखूं, तो आप प्रायोरिटाइज करेंगे कि नहीं मुझे सिर्फ इतने ही घंटे काम करना है, इसमें मुझे जो मिले मैं उससे संतुष्ट हूं। तो वो गारंटी है आपको भगवान जो है आपकी मदद करेंगे। क्योंकि एक चीज देखिए, याद रखिए कि भगवान जो हैं वो भी देख रहे हैं, राइट। वो आपके भगवान में आपकी जो भगवान के प्रति विश्वास है उसको वो देख रहे हैं। भगवान सबके हाथ में बैठे हैं, और भगवान हमारी तरह नहीं है कि कोई चीज को भूल जाए, इसलिए उनका नाम भगवान है और हम नहीं है भगवान, है ना। वो सब कुछ जानते हैं अंदर। तो अगर वो ये देखेंगे कि कमाल की बात है, अगर ये थोड़ा टाइम मेरे लिए स्पेंड करने के लिए अपने आवर्स जो है वो थोड़े कम करने को तैयार है, तो आपको क्या लगता है वो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना। ये फर्क है देखिए मनुष्य और भगवान में, है ना। मनुष्य जो है वो कभी भी ग्रेटफुल नहीं होता। जैसे समझिए आप मेरे लिए 8 घंटे काम करें, 10 घंटे काम करें, कल अगर आप कुछ भी मेरे लिए थोड़ा भी नहीं करेंगे तो मैं बोलूंगा देखना क्या आदमी है, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। आप मानते हैं ना ये बात। कितना भी देखिए किसी के लिए काम कर लीजिए, है ना, वो बोलते ही रहेंगे, कभी भी खुश नहीं होंगे। 1 साल किसी के लिए काम कीजिए आप दिल लगा के, उसके बाद 4 दिन उसके लिए काम मत कीजिए और उसके हिसाब से मत काम कीजिए, 5वें दिन वो आपको निकाल देगा, है ना। वो ये नहीं देखेगा कि यार इसने 1 साल मेरे लिए इतना काम किया और अब मैं इसको सिर्फ 4 दिन ये बीमार हो गया, या इसने थोड़ी पगार ज्यादा मांग ली, या ऐसे कई रीजंस आएंगे। आप भी जानते होंगे, श्योर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। पर भगवान ऐसे नहीं है,
यही मैं बार बार बोलता हूँ, आप बार बार सोचिए, देखिए कि हम भगवान को क्या हम रोज याद करते हैं और कितना याद करते हैं, क्या हम ग्रेटफुल हैं? पर देखिए भगवान हमें, देखिए हवा दे रहे हैं, बारिश दे रहे हैं, सूरज दे रहे हैं, चांद दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अगर वो हमारी तरह बन जाए तो वो तो सब कुछ, अगर वो बंद कर दें तो सब कहानी खत्म। हाँ, अगर आप देखिए सूरज बंद हो जाए तो त्राही मच जाएगी। आप लोगों ने, सबने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, उसमें आप जानते हैं कि भगवान ने कैसे, हनुमान जी ने कैसे उनको अंदर स्वॉलो कर लिया। तो देखिए त्राही मच गई, डेमिगॉड्स आपस में, देवी देवता जो है सब हैरान हो गए कि सूरज जो है वो चला गया है। तो कैसे उनको नीचे आना पड़ा, और सब लोगों ने जो है हनुमान जी को प्रार्थना करी कि प्लीज उनको छोड़ दीजिए। तो देखिए सूरज जो है देवता रोज उगते हैं, ठंड हो या गर्मी हो, है ना। हम लोग कभी कभी सर्दी होती है तो लेट हो जाते हैं उठने में, आज चलो यार 4 नहीं 4:30 उठ जाएंगे, लेकिन अगर सूर्य देवता ऐसे करने लगे तो तकलीफ हो जाएगी, है ना, सब कुछ आगे पीछे हो जाएगा। तो ये सब कुछ कैसे कंट्रोल चल रहा है, ये सब भगवान चला रहे हैं उन्हें। तो भगवान जो है और मनुष्य में बहुत फर्क है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, आप ट्राई करके देखिए, आप थोड़ा टाइम ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली आपको जो ज्यादा करके मिलना था वो जल्दी जल्दी मिलने लगेगा। पर ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अब ना मिले तो हम भगवान से नाराज हो जाएं। फिर हमें ये संतुष्टि रखनी चाहिए कि मेरे कर्म ही ऐसे होंगे, हमें भगवान के ऊपर जो है ब्लेम नहीं करना चाहिए। पर हमें समझना चाहिए कि मैंने अपना कर दिया काम जो मुझे करना था, भगवान को भी सेटिस्फाई कर दिया, बाकी अब भगवान की मर्जी कैसे क्या मुझे मिलता है क्या नहीं मिलता। देखिए ये फर्क है भगवान के डिवोट भक्त में और एक नॉर्मल आदमी में। नॉर्मल आदमी जब करता है जब और कुछ मिलने लगता है उससे, तो वो सोचता है मैं ये मेरी वजह से हुआ, देखो मैंने ये पेंटिंग करी इसलिए मिल गया, मैंने ये बिल्डिंग, अपने दिमाग से मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। पर जो भक्त होता है वो सोचता है कि भगवान की वजह से मिल गया। पर देखिए फर्क क्या है फिर, जब जो भक्त नहीं होता, जब कुछ गड़बड़ होता है तो वो भगवान पे दोष डाल देता है, या वो लोगों पे दोष डालने लगता है कि तुमने ढंग से काम नहीं किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। पर जो भक्त है वो जानता है कि मेरे ही कुछ कर्म ऐसे होंगे और इसकी वजह से मुझे जो है ऐसे मिल रहा है। तो वो भगवान पे छोड़ देता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, अब आपके ऊपर पूरा विश्वास होता है भगवान के ऊपर कि वो मुझे मेरी रक्षा जरूर करेंगे, कैसे भी करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न प्रभु जी। तभी मैं कह रहा हूँ ये थर्ड चैप्टर आप धीरे धीरे अब आप देखिए कितना मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है थर्ड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर जो था हो सकता है जैसे मैंने कहा थोड़ा डिफिकल्ट था, पर अब जो है बड़ी ऐसी बातें आएंगी जो हम एक नॉर्मल आदमी जो है डे टू डे लाइफ में रिलेट कर पाएगा। जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग सोचते हैं, आप आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग बोलते हैं भक्ति मतलब सब छोड़ दो। पर क्या ये भक्ति है? ये भगवान देखिए आगे बताने वाले हैं कि भक्ति क्या है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप सब लोग भक्त हैं, आप सब लोग जो हैं भक्त हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान कह रहे हैं आप वो कर रहे हैं, वही भक्त हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है हिमालयस पे, कहीं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। ग्रस्त है तो ग्रस्त रहिए, बिजनेस में है तो बिजनेस में रहिए, जैसा पर भगवान कह रहे हैं बस वैसा कीजिए, तो आप भक्त भी हैं और जब आखिरी समय आएगा तो भगवान के पास ही जाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ेंगे सेकंड पे। देखिए क्या हाँ जी, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयिषीव मे तद एकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहम् अपनुयम्। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है होगा। अगर आप लोगों को याद हो तो सेकंड चैप्टर में भी 2.9 में भगवान अर्जुन ने भगवान से यही बात बोली थी कि मेरी जो बुद्धि है वो मोहित हो गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो वैसे ही अब मैं आपका शिष्य बनता हूं और आप मुझे बताइए एग्जैक्टली कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वैसे ही समथिंग लाइक दैट जो है फिर से यहाँ पे जो है अर्जुन जो है भगवान से ये पूछ रहे हैं कि मेरी जो बुद्धि है वो मोहित हो गई है आपकी इंस्ट्रक्शन सुन के। फिर से वही बात हुई नहीं है, पर वो हम लोगों के लिए ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि जो लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि भक्ति मतलब क्या। तो अब आप मुझे एग्जैक्टली बताइए कि क्या मेरा क्या ऐसा
डिसीजन बताइए कि मैं क्या डिसीजन लूं कि जो मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। तो ये एक चीज जो है जो अर्जुन है भगवान से फिर बोल रहे हैं कि तुम आप मेरे को फिर से एक्सप्लेन कीजिए कि क्या मेरे लिए सही है। अब देखिए भगवान बताएंगे। श्री भगवान उवाच लोकोस्मिन् द्विविध निष्ठा पुरा प्रोक्तो मयनघ ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में द्वारा। ये भगवान जस्ट एक रिपीटिशन कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि ये कैसे समझा जा सकता है। मैं पहले ही दो तरह के मनुष्यों के बारे में बता चुका हूं। जो सेल्फ को समझना, सेल्फ मतलब कि मैं आत्मा हूं, समझना कि किस तरह से समझते हैं। एक तो हमने बात करी थी कि जो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये नहीं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, तो मैं क्या हूं। सांख्य फिलॉसफी, इसको सांख्य फिलॉसफी कहते हैं कि ये चीज ये नहीं है, ये चीज ये नहीं है। भगवान क्या है, कंट्रोल कौन कर रहा है इस सारे जगत को। सांख्य मीन्स संख्या से मतलब काउंट करना। तो इससे आ रहा है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये आपको याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आत्मा के बारे में बात करी थी कि मैं कट नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं जल नहीं सकता। तो हमने डिस्कस किया था कि भगवान ऐसे क्यों बता रहे हैं, कि ये बता रहे हैं कि आप ये भी नहीं हो, 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 तो फिर आप क्या हो, आप आत्मा हो। तो वैसे ही भगवान फिर से ये बता रहे हैं कि एक तो ये तरीके है सांख्य फिलॉसफी, इस तरीके से समझना। और दूसरा क्या है कि जब आपने समझ लिया कि भगवान कौन है, ये भी नहीं, कंट्रोल कौन कर रहा है, ये तो भगवान जो है वो महान है, तो फिर भगवान को पूजना, भगवान को पूजिए आप, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। तो इसलिए इस तरीके से जो है भगवान की सेवा करी जा सकती है। ये थोड़ा सा रिवीजन आ गया, इस पे आप ज्यादा मतलब इससे घबराइए मत कि अभी हम बात कर रहे थे भक्ति क्या है और सडनली ये कहाँ से बीच में आ गया। ये एक जस्ट छोटा सा बीच में रिवीजन आ गई, कोई बात नहीं। अब आप 4 पे देखिए और फिर से भगवान जो है, अभी जो हमने 2 पहले वर्ष किए उसी से फिर से भगवान जो है कनेक्ट करके आगे चलने लगेंगे। देखिएगा, ना कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुत ना चा संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे जो है भगवान लेजीनेस जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं लेजी को हिंदी में, जैसे कि कुछ ना काम करने वाला जो होता है, उसको भगवान जो है एक तरह से डांट लगा रहे हैं कि छुटकारा। हाँ जी, आलसी आलसी पने को जो है भगवान बता रहे हैं कि आलसीपना नहीं चलेगा। तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ये समझ रहे हैं कि भक्ति मतलब सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, और भगवान बोल रहे हैं आलसीपना नहीं चलेगा। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, कुछ लोग क्या है जो फिलोसोफर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि अगर कुछ हम काम करेंगे, समझिए अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, फिर हम क्या होगा, अच्छे फल मिलेंगे, हम ऊपर जाएंगे, फिर क्या होगा, जब अच्छे फल खत्म हो जाएंगे, कर्म खत्म हो जाएंगे, फिर इस धरती पे आ जाएंगे। और वो सोचते हैं अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो नीचे जाएंगे, तो नरक लोगों में तड़पेंगे, आंख से जलेंगे, बहुत कुछ तकलीफें मिलेंगी, फिर जब खत्म होगा ऊपर आएंगे। तो वो क्या सोचते हैं कि ना अच्छे कर्म करो ना बुरे कर्म करो, कुछ करो ही मत, बैठ जाओ बस, ये बोलते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि फ्रीडम जो है वो ऐसे नहीं मिलने वाली। भगवान हमारे भलाई के लिए बता रहे हैं कि फ्रीडम जो है इससे नहीं मिलने वाली। सोचिए इस बारे में, है ना, कि अगर हम ये समझ जाएं कि हम पुण्य काम करते हैं कि हमें अच्छा वो मिले, ऊपर जाके हम स्वर्ग में जाएं और उसके बाद नीचे आए फिर अमीर हों। कई लोग देखिए पानी बांटते हैं, ये सारी चीजें करते हैं कि, पर आप जब नीचे आएंगे फिर से
अपने कर्म खत्म करके स्वर्ग में नीचे आएंगे तो और फिर बहुत सुंदर भी हो सकते हैं, बहुत अमीर भी हो सकते हैं, लेकिन तकलीफें देखिए हमेशा फिर भी रहेंगी। हम इस बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आज हम इस बारे में करेंगे कि बहुत फिर भी तकलीफें आएंगी, दांत दर्द फिर भी होगा, और कितने भी आप अमीर हो जाइए मृत्यु तो फिर भी आएगी। तो फिर लोग जो फिलोसोफर्स होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो सोचते हैं काम करो, काम ही करना छोड़ दो, पर ये तरीका नहीं है बचने का, ये तरीका नहीं है बचने का। तो क्या तरीका है वो वैसे आगे भगवान आगे बताएंगे। पर जो लोग ऐसे सोचते हैं कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे तो वो भी एक काम है, क्योंकि कुछ काम करना मतलब, कुछ काम ना करना मतलब क्या, किसी ने बैठे रहना, तो बैठे रहना भी एक काम है। फिर क्या होगा, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप अगले जन्म में भालू बनेंगे, पोलर बियर बनेंगे। पोलर बियर आपको पता है क्या होते हैं, वो सफेद कलर का भालू होता है। वो क्या करता है कि वो जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो वैसे तो उन्हें मजा आता है खेलने में, लेकिन वो 6-6 महीने अंदर बैठे रह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि फिर आप वो बन जाएंगे। तो इससे रिनाउंस करके मतलब सारी चीजें छोड़ के कोई आदमी जो है फ्रीडम नहीं पा सकता इन चीजों से। तो फिर कैसे पाया जा सकता है, ये भगवान अभी जो है आगे बताने वाले हैं। तो पर इसका मतलब क्या हो गया कि फिर से वही भगवान ये नहीं कह रहे कि काम छोड़ दो। देखिए कितनी अच्छी बात है, बार बार भगवान अब हमारे डाउट्स जो हैं क्लियर करेंगे कि भगवान ये नहीं कह रहे कि भक्ति मतलब काम छोड़ दो। भगवान क्या कह रहे हैं भक्ति मतलब, वो हम आगे बढ़ेंगे ना। भगवान ये कह रहे हैं कि आप जंगलों में चले जाइए, क्योंकि देखिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो आदमी इमेच्योरली जिसका अभी दिमाग रेडी नहीं है, आप जंगलों में चले जाएंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के, तो वहां पे भी आपके साथ प्रभुपाद जी कहते हैं 6 पत्नियां रहेंगी। ये 6 पत्नियां मतलब क्या, 6 पत्नियां मतलब 5 तो हमारी इंद्रियों को बताया गया है और एक जो है हमारे मन को बताया गया है। आपकी इंद्रियां वहां पे भी आपको तंग करेंगी और मन जो है आपको वहां पे भी तंग करेगा। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं भगवान की ऐसी सारी चीजें करके जो है वो संतुष्टि नहीं मिलेगी, और ना ही कुछ छोड़ के जो है आपको ये संतुष्टि मिलेगी। तो कैसे संतुष्टि मिलने वाली है वो अभी हम आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। एक 5वां और करेंगे और उसके बाद रुक जाएंगे, अगर किसी के मन में प्रश्न है तब करेंगे, लेकिन 5वां आज करेंगे। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ कर्म कृत करियते अभिशा कर्मा सर्वे प्रकृतिर जय गुना। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। मतलब क्या कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं काम ही करना छोड़ दूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। पहले तो भगवान ने बोला कि मत करना, पर उसके बाद आगे एक स्टेप और बढ़ के बोल रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कितनी बढ़िया बात भगवान बोल रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप बोलें कि मैं सब काम छोड़ के जो है सब छोड़ के बस पहाड़ों पे चला जाऊं। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। काम तो करना ही करना है। तो कैसे काम करना है वो आई थिंक हम कल करेंगे, क्योंकि अब 10-20 हो गए हैं, और अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो हम कल आगे पढ़ेंगे। कल और भी भगवान इंटरेस्टिंग बताएंगे। अभी तो ये बता दिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं, पर फिर करना क्या है, अगर पॉसिबल नहीं है तो सोल्यूशन क्या है, वो कल जो है भगवान इस बारे में कल बताएंगे। तो अगर आप किसी के मन में कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट या ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा जी। आज आपके हमारे बीच आज हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त ओमकार प्रभु आए हुए हैं, जो कि बहुत सालों से कृष्णा भक्ति में है। तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। वो यूएसए से शिफ्ट होके इंडिया शिफ्ट हो चुके हैं और वहां जाके स्कूल चला रहे हैं और आईटी के बिजनेस में भी हैं। तो मैं ओमकार प्रभु से एक क्षण के लिए बोलूंगा कि अनम्यूट करके हमें इंट्रोडक्शन दे। ओमकार प्रभु जी। अच्छा, अनम्यूट करो कर सकते। हमारे बीच मेरा कजिन सत्यम भी है, जो कि आज ज्वाइन किए हुए हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू आप सब लोगों का, आप आ रहे हैं इस क्लास में। थैंक यू वेरी मच।
करिए, और किसी को कोई क्वेश्चन या कंसर्न है या कुछ ऐड करना चाहते आज हम मनु माता जी को भी देख रहे हैं कि वो बहुत टाइम के बाद वापस आज ज्वाइन किए हुए, तो मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करूंगा जो कि आज वापस ज्वाइन किए। थैंक यू अनु माता जी फॉर ज्वाइनिंग बैक। Thank you. But I just wanted to say I missed this class in live, but I was able to hear them. Thank you, and I really enjoyed Maharaj's Hindi class that he gave. That was very amazing. Thank you so much. एक कजिन कृष्णा भी आज ज्वाइन किए, तो मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ ज्वाइन करने के लिए। Thank you, everyone. हरे कृष्ण। थैंक यू जी। Hare Krishna. चलिए बढ़िया लगता है। आज कोई प्रश्न नहीं है, कल आएगा, क्योंकि कल जो है भगवान थोड़ा और बताएंगे। आई एम श्योर कल हरे कृष्ण कई लोगों के में प्रेशर होगा। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। जो आगे बात हुई थी वो हिसाब से ऐसा है कि यहाँ पे अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ था आगे, तो स्टार्टिंग में हमको बहुत ही लिमिटेड टाइमिंग मिला हुआ था। वो टाइमिंग के हिसाब से हमको आना था। फिर ऐसा भी पर्टिकुलरली हम लोगों को नेसेसरी में लेके मतलब पूरा दिन दिया था, मतलब सबको मालूम नहीं था कि ये लोगों को छुट्टी दिया हुआ, मतलब पेपर न्यूज पे सब पे जब आया था सही, और कई लोगों को ऐसा कि भाई नहीं सब बंद ही है, तो कोई आ ही नहीं रहा था। तो हमको वो हिसाब कि भाई उससे तो अच्छा था कि बंद दे देते तो अच्छा था, कि जैसे ही छूट मिली तो सब आना शुरू हुए, तो लगा भाई नहीं भगवान की इच्छा है तभी होगा, वरना कितना भी बैठे रहो नहीं होगा तो नहीं होगा। मतलब आप पूरे दिन बैठे भी रहो फिर भी काम नहीं होगा। और कई बार जो आपने अभी आगे बताया वो हिसाब से भी 2 घंटे का टाइम मिला, तो 2 घंटे के उसमें भी पूरा दिन का काम हो जाता है। जी प्रभु जी, अभी आपने बताया वो हिसाब से कोई नहीं, जैसे प्रभु की इच्छा है तो वो हिसाब से ही होगा, उससे ज्यादा नहीं मिलना मतलब नहीं मिलना। बिल्कुल राइट। घर के लिए भी जो टाइम देना है वो देना है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि प्रभु जी हम एक चीज भूल जाते हैं कि कस्टमर्स जो हैं वो ऑफ कोर्स हमारी मेहनत से आते हैं और हमारे ढंग से बात करने से और हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस से आते हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं चीजों पे डिपेंड नहीं करता, भगवान का सैंक्शन भी होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटी सी अभी एक बात बताता हूँ, सिंस हमारे पास टाइम और कोई प्रश्न नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे कल परसों हम लोग, हमारे यहाँ रथ यात्रा होने वाली है अब 11-12-13 को, कुछ ही दिन में, अगले हफ्ते। तो हमें 8000 प्लेट्स चाहिए थी, तो हम कल किसी काम के लिए होलसेल मार्केट में गए थे। वहां पे हर चीज जो है होलसेल पे मिलती है। तो हमारे आगे जो एक आदमी था उसके पास भी बहुत माल था, वो पे करने के लिए खड़ा था लाइन में। तो हम उसके पीछे खड़े थे, जेट्रो करके एक जगह है। तो उसने आउट ऑफ काइंडनेस देखा कि भाई भक्त लोग आए हैं मंदिर के हैं, तो बोला ठीक है साहब पहले आप आगे चले जाइए। तो हम बड़ा खुश हो गए, हमने बोला वाह वाह मजा आ गया, बहुत टाइम बच गया। बिलीव कीजिए कम से कम 15-20 मिनट बच गए होंगे, क्योंकि उसके पास इतना सामान था कि पे करने में कम से कम 15-20 मिनट जाएंगे। वो पहले उसको स्कैन करेंगे टीट 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 हर जगह पे ऐसे। तो हम बहुत खुश हुए, लेकिन हम जैसे ही गए उसके बाद वहां पे जो उसका कंप्यूटर था वो खराब हो गया। जैसे ही हम पहुंचे उसका जो था कंप्यूटर हो गया खराब, और फिर हमें दूसरी जगह जाके लाइन में रुकना पड़ा, और जहां हम एक आदमी के पीछे थे वहां पे 4 आदमियों के पीछे और खड़ा होना पड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि कोशिश हम करते हैं किसी तरह की, चलो हमें अब फायदा मिल जाएगा, अपना दिमाग यूज करते हैं, इंटेलिजेंस यूज करते हैं, लेकिन अगर भगवान का सैंक्शन ना हो तो पास पहुंच के भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हमें विश्वास रहना चाहिए। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि हमें अपनी तरफ से अपनी काम करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। अगर हमें अच्छी सर्विस देनी है कस्टमर्स को,
लेकिन हमें एक चीज ये देखना है कि अगर भगवान चाहेंगे तो हमें वो उतने टाइम में भी दे देंगे, और अगर नहीं चाहेंगे तो आप लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, उसके बावजूद भी आपको कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। जैसे आप देखिए, मैं हमेशा धीरू भाई अंबानी जी की बात सोचता हूँ हमेशा। देखिए कितने कितने कम समय, मतलब मेहनत तो उन्होंने करी, लेकिन आप देखिए उन्होंने पूरा एक, जिसको एम्पायर कहते हैं, खड़ा कर दिया। कितने जबरदस्त था। और कुछ खास पढ़े लिखे नहीं थे वो, पर अपनी मेहनत से और अपनी जुबान से, अपने दिमाग से उन्होंने ये सारा जो है खड़ा कर दिया। ठीक है। पर अब आप दूसरी तरफ देखिए, कई लोग आप देखेंगे अमेरिका से पढ़ के आते हैं, एमबीए पढ़ के आते हैं, लंदन से पढ़ के आते हैं, क्या क्या नहीं करके आते, उसके बावजूद भी क्या वो उनकी तरह बना पाते हैं? उनकी तरह बना पाते हैं? नहीं बना पाते, क्योंकि सिर्फ मेहनत, फिर से वही बात, मेहनत तो करनी है, लेकिन सिर्फ वही एक चीज नहीं है जो चीजों को आगे बढ़ाता है। इसमें भगवान का सैंक्शन, आपके कर्म, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। इसलिए हमें ये मेहनत करनी है। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, मेहनत भी करनी है हमें। मेहनत से बच नहीं सकते। भगवान देखिए यहाँ पे क्लियर बोल रहे हैं, काम तो करना है, लेकिन भगवान के लिए भी थोड़ा समय निकालना है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो चाहें तो कुछ भी चीजें चेंज कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आपको देता, हमारे गुरु महाराज जी बोलते हैं, जो उस दिन आए थे हिंदी में जिन्होंने क्लास दी, वो ये बोलते हैं कि समझो अगर आप एक रेस्टोरेंट में गए और आप 4-5 लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो ओनर आएगा वो आपको बिल दे देगा, भाई ये लो इतना बिल आ गया, है ना, 500 रुपए का बिल आ गया, समझिए, ठीक है। तो आप लोगों को पे करना है। लेकिन अगर ओनर बोले जाने दो, तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है, तो फिर खत्म हो गई बात। वैसे ही अगर भगवान बोले कि हमने अपने अपने अलग अलग हमने कर्म किए हैं और उसके हिसाब से हमें फल मिल रहा है, लेकिन जैसे अगर हम भक्ति करते हैं, हम भगवान के लिए थोड़ा समय निकालते हैं, और अगर भगवान चाहेंगे तो हमारे कदम जो हैं वो बदल सकते हैं, तो हमें वो जो इतना मेहनत करने की थी वो थोड़े टाइम में भी मिल सकती है। इसलिए भगवान के लिए समय जरूर निकालिए, क्योंकि ये भी जो एक है हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, वो उनके लिए भी हमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। तो ये विश्वास अगर होगा तो आगे जो लाइफ है वो इजी हो जाएगी। चलिए, और कोई अगर कमेंट या क्वेश्चन? बहुत अच्छा प्रभु जी, थैंक यू पीयूष प्रभु जी, बहुत अच्छा। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंस होता था। हाँ जी। मैं पारुल बहन भावसर का भी स्वागत करना चाहूंगा, जो कि आज पहली बार ज्वाइन किए हमें। तो वेलकम टू अवर गीता ज्ञान क्लास। आप जुड़ते रहे हमारे साथ हर सैटरडे और संडे सुबह 9:30 बजे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर और किसी का कोई और क्वेश्चन या कंसर्न है तो प्लीज आप जब तक कोई क्वेश्चन बोलता है या कोई कमेंट देता है, मैं तब तक कुछ बोलना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जिसको कहते हैं सुपर गुड चैप्टर है। इसमें हमें आर्ट ऑफ वर्क कि कैसे काम करना है, ये हमें पता लगेगा कि कैसे काम तो करना ही है हमें, इस दुनिया में रह के काम करना है, हमें छोड़ना नहीं है, लेकिन कैसे काम करना है ये भगवान जो है खुद अपने मुंह से बताएंगे। और देखिएगा कैसे भगवान अपने मुख से जो है ऐसे लोगों को डांट लगाएंगे जो लोग सोचते हैं कि हमें सब छोड़ के भक्ति करनी है। नहीं, जैसे मैंने कहा कि जिस पोजीशन पे हैं, जिस सिचुएशन में हैं, ग्रस्त हैं, बिजनेसमैन हैं, जो कुछ हैं, उसी में रह के भगवान कह रहे हैं कि आप भी भक्ति कर सकते हैं। ये कलयुग का समय, यहाँ पे आपको जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था पृथु महाराज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैसे, नहीं सॉरी, प्रियव्रत महाराज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैसे वो तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब उनके गुरु ने कहा कि आप वापस आइए और राजा बनिए, तो वो राजा बन के भी जो है भक्ति करने लगे। ऐसा नहीं कि अब आप राजा नहीं बन सकते अगर आप भक्त हैं तो। हाँ, तो भक्त रह के आप सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, और किसी का अगर कोई प्रश्न हो या कमेंट हो, नहीं तो आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे और कल आगे बढ़ेंगे कि भगवान और क्या बताएंगे हमें। चलिए, लगता है माता जी कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा 3 बार बोल के क्लास को आज रोकेंगे।
हरे कृष्णा। थैंक यू गीता माता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत फिर से। थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हम ऐड कर सकते हैं आज का सेशन। चलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, भगवद गीता की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। हरे कृष्णा। कल मिलिए सब। कल सुबह 9:30 बजे वापस यही। हरे कृष्ण। यस। कैसे आ गई